Hi guys, welcome back to our channel. So today we are shooting one of the most requested video of our Singapore series. हमारे हर एक वीडियो के नीचे, लिटरली हर एक वीडियो के नीचे ये कमेंट आया है कि आपने कैसे प्लान किया ट्रिप, आप अपनी आइटनरी शेयर करो, बजट शेयर करो एंड आवर डीएम्स वर फ्लडेड व्हेन वी मेंशन कि हमने ये ट्रिप अंडर 50K पर पर्सन किया है. Yes, guys, that's true. And to know how, you need to watch this video till the end. And some useful tips are going to be there. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइटनरी से. Yes, let's start day wise. So day 1 is going to be the day when you land in the country. तो पहले दिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो वाटर फ्रंट एंड मरीना बे एरिया. यू कैन जस्ट टेक अ वॉक अराउंड दिस एरिया एंड enjoy the best views covering the most famous photo spots like Marina Bay, Floating Apple Store, LV Store, Helix Bridge, Business Bay and Marline Park. You can also check out Shoppes Mall if you have some more time in hand. We would recommend आप थोड़ा शाम के टाइम जाओ so that you can check out the famous light and music show. It is called Spectra, which starts from 8 p.m. and it goes like 8 to 8:15, 9 to 9:15 and 10 to 10:15 last. And if you're interested in partying a little, you can go up to the top of Marina Bay Sands and enjoy panoramic view and skyline of SG for free. Yes, there are 2 rooftop restaurants at 57th floor of this building called Selavi and Lavo. You can book a table there and of course you have to pay for the food and drinks. You can dedicate second day to Sentosa Island. Actually एक नहीं, आपको 2 दिन देने होंगे Sentosa Island को. एक दिन तो आपका पूरा यूनिवर्सल स्टूडियोज में ही लग जाएगा. It is one of the most visited place and also worth every penny. तो यहाँ जाना तो बनता है. टाइमिंग्स है 12 to 7 PM. तो पूरा दिन आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो. ऑल्सो ट्रांसफॉर्मर एंड मम्मी राइड बिल्कुल मिस मत करना. Halfway across this place. डे 3 में आप सेंटोसा आइलैंड की बाकी एक्टिविटीज कवर कर सकते हो लाइक सी एक्वेरियम, लूज राइड, आई लाइन, आई फ्लाई, मैडम तुसाड्स, ट्रिक आई म्यूजियम डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड प्रेफरेंसेस. एंड एक्टिविटीज करने के बाद यू कैन हेड ओवर टू द फेमस बीच कॉल्ड सेंटोसा बीच एंड एंजॉय द सनसेट देयर. एंड इफ यू वांट लेस क्राउड एंड मोर पीसफुल सराउंडिंग्स यू कैन हेड ओवर टू पालावान बीच यूजिंग द फ्री ट्रैम देयर व्हिच इज आवर पर्सनल फेवरेट एज वेल. डे 4 में आप इंटरेस्टिंग नेबरहुड्स एक्सप्लोर कर सकते हो लाइक स्टार्टिंग विद हाजी लेन and Arab Street. After that, you can check out the Bugis Street area for quick snacks and shopping. Followed by Chimes and National Gallery. एंड सेम डे आप शाम को बोट की और क्लार्क की भी एक्सप्लोर कर सकते हो. डे 5 पे यू कैन प्लान अ विजिट टू गार्डन्स बाय द बे. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल डोम्स हैं विच आर कॉल्ड क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम एंड न्यूली बिल्ट फ्लोरल फैंटेसी. अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनकी टिकट्स लेकर जा सकते हो और एक डोम में आपको 1.5 आवर्स तक लग जाएगा. एंड वंस यू आर डन विद एक्सप्लोरिंग दीज डोम्स यू शुड नॉट मिस द फ्री लाइट एंड म्यूजिक शो विच हैपन्स डेली at 7:45 and 8:45 p.m. It is called Garden Rhapsody and it happens within the Gardens by the Bay at Super Groove Trees area. And lastly, before boarding your flight back to your country, make sure you have 2-3 hours extra to explore world's best airport since 8 years, the Changi Airport. It is not just an airport but a travel destination itself. The main attraction nowadays is the Jewels Changi. It is world's tallest indoor waterfall inside the airport and there are many more activities like the slide, canopy park, theme park and a lot more gardens to explore here. And if you have more than 6 days and you're willing to travel a little, you can explore Singapore Zoo, Night Safari, Botanic Gardens and Fort Canning Park as well. So let's talk about the budget now. हम लोग सिंगापुर गए थे 5 nights और 6 days के लिए and this budget depends on the activities we did there. Also prices may vary whenever you book, so please keep that in mind. So let's talk about the flight first because सबसे पहली चीज़ जो आप बुक करोगे वो फ्लाइट से ही होनी चाहिए. उसके बाद ही आपका वीज़ा, एकोमोडेशन एंड ऑल आप बुक करोगे. तो आपको ध्यान रखना है कि आप
अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो आप पीक सीजन में ना बुक करो और उस टाइम ना जाओ, क्योंकि सिंगापुर एक ईयर राउंड डेस्टिनेशन, आप कभी भी जा सकते हो, कोई सर्दी गर्मी नहीं होती, हमेशा एक प्लेजेंट सा मौसम रहता है. सो यू मेक श्योर यू ट्रैवल ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, जो कि फेब, दिसंबर एंड अगस्त को छोड़ के बाकी सारे मंथ्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फेब में होता है चाइनीज न्यू ईयर, प्राइसेस गो रियली हाई, एंड अगस्त में होता है वहाँ का नेशनल डे, एंड दिसंबर में ड्यूरिंग क्रिसमस सीजन एंड ऑल वहाँ पे हॉलीडेज होती हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट उस टाइम पे भी ट्रैवल करते हैं. सो मेक श्योर कि आप इन 3 मंथ्स को छोड़ के आप बाकी मंथ्स में प्लान करो इफ़ यू आर इन बजट. एंड वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज बैंक कोड्स और ऑफर्स जो होते हैं जो ट्रैवल वेबसाइट देती है, लाइक मेक माई ट्रिप से हमने अराउंड 5,000 सेव किए थे व्हेन वी वर बुकिंग, एंड वी बुक्ड अराउंड 1.5 month बिफोर द डेट ऑफ ट्रैवलिंग, एंड या इट कॉस्टेड अस अराउंड 18,000 per person. आफ्टर डिस्काउंट. Yeah. Second thing that you need to book is accommodation. If you're traveling with your friends, then you can book hostels. वहाँ के हॉस्टल बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, और एंड अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने फैमिलीज के साथ, देन यू कैन बुक बजट होटल. हम लोगों ने भी IBS बजट होटल बुक किया था, जो कि हमें पड़ा था पर नाइट 2,500 पर पर्सन के हिसाब से. So next comes your visa that you need to apply. It usually comes within a week. और हमारा तो एक ही दिन में आ गया था, बिकॉज उस टाइम पे एप्लीकेशंस बहुत कम थी वीज़ा की, और बहुत तभी खुला ही था सिंगापुर, बाकी कोविड रिस्ट्रिक्शंस जब हटी थी. एंड इसके 2 तरीके हैं अप्लाई करने के. आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो. इफ़ यू अप्लाई ऑनलाइन, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 30 Singapore dollars, which will be around 1,500 to 1,600 rupees. But only do that when you are sure of applying visa. अगर आपने पहले कभी किसी कंट्री के, या यूजुअली आपको श्योरिटी है कि आप अप्लाई कर सकते हो और कोई रिजेक्शन नहीं आएगी. जनरली आती नहीं है सिंगापुर में, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर मेंशन्ड ऑनलाइन. एंड अगर आप खुद से अप्लाई नहीं करना चाहते, कोई हैसल नहीं चाहते हो, और सब कुछ एजेंट से कराना चाहते हो, तो आपको अराउंड 2,000 का पड़ जाएगा. तो वी डिड द सेम, हमने MMT से कराया था, एंड यू ऑल्सो कैन अप्लाई योर वीजा विद एनी ऑफ द ट्रेवल एजेंट्स. एंड नाउ कम्स योर अट्रैक्शन टिकट्स. जो भी आप एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने वाले हो, मोस्टली एक्टिविटीज़ वहाँ पे सेंटोसा आइलैंड पे होती है, आपको पता ही होगा अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं. अगर नहीं देखी है, क्लिक ऑन द आई बटन एंड चेक देम आउट नाउ. द पेड एक्टिविटीज़ वी डिड वर यूनिवर्सल स्टूडियोज, स्काईलाइन एंड लूज राइड, एंड सी एक्वेरियम, गार्डन्स बाय द बे. या तो यही सारी एक्टिविटीज़ पेड थी, बाकी सब हमने फ्री एक्टिविटीज़ की थी. एंड हाउ वी डिड इट, तो आपको वीडियो देखनी है, यू नो द ड्रिल. एंड हम लोग स्क्रीनशॉट्स डाल देंगे कि हमारी कौन सी टिकट कितने की पड़ी थी. ऑल इन ऑल ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप बंडल डील में भी लोगे या अलग अलग बुक कराओगे, तो भी आपको अराउंड 10,000 की पड़ जाएगी. और हाँ, आपको कहाँ से बुक करानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बुक इट थ्रू क्लूक. हमने भी वहीं से कराई थी. इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटी बुकिंग इन सिंगापुर स्पेशली. तो आप इंडिया में रह के ही पहले ही अपनी सारी एक्टिविटीज़ डिसाइड करके बुक कर सकते हो, आपको कौन से दिन कहाँ जाना है. बट ये ध्यान रखना, कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे फिक्स डेटेड होती हैं कि आपको इस दिन जाना है, तो आपको उसी डेट की बुक करनी है. तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली. सो आपको कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन प्लान ऑल द एक्टिविटीज फॉर योरसेल्फ ऑन योर ओन, सिटिंग इन इंडिया एट योर होम. एंड येस, व्हाई एम आई सजेस्टिंग क्लूक, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा प्राइसेस में. अगर आप ओवर द काउंटर बुक करोगे तो आपको एक तो लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. बट अगर आप क्लूक से बुक करोगे तो आपको बहुत सारी बंडल डील्स मिलती हैं कि 2-4 एक्टिविटीज़ आप एक कर लो, यूनिवर्सल के साथ एक मिक्स कर लो, तो आपको इतने की पड़ेगी. तो इट यूजुअली सेव्स अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि अट्रैक्शंस भी वहाँ पे महंगी होती है, स्पेशली यूनिवर्सल स्टूडियोज. हमारी यूनिवर्सल की 3,000 to 4,000 के बीच पड़ी थी. वी विल मेंशन द प्राइसेस एंड पुट द स्क्रीनशॉट्स एज वेल, सो यू कैन चेक आउट. अब आते हैं लोकल ट्रैवल पे. सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही वेल कनेक्टेड है. यहाँ की टैक्सीज बहुत महंगी हैं, तो वी वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग MRT या फिर बस से ही ट्रैवल करो. हम लोगों ने भी यही किया था. आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से एक यूनिवर्सल MRT कार्ड बना सकते हो, जो कि हर जगह यूज़ हो जाता है. मोस्टली बसेस में, मेट्रो में, आप ग्रॉसरी शॉप पे, इवन लॉकर्स हायर कर लो तो वहाँ पे भी चल जाता है. तो हम लोगों ने $20 ईच कार्ड पे हम लोगों ने स्पेंड किया था, जो कि 5 डेज़ के लिए इनफ होता है. ऑल्सो जब आप वापस आ रहे होते हो तो आप उस कार्ड को जब वापस रिटर्न करते हो मेट्रो स्टेशन पे, तो उस कार्ड की वैल्यू होती है $5 to $6, वो आपको रिफंड मिल जाता है. Now coming on to food. Food is really important for us. Being foodies, हम जब भी जाते हैं हम फूड की चीज़ें भी पहले प्लान करके रखते हैं, फूड आइटम्स की क्या क्या ट्राई करना है, क्या क्या खाना है. एंड वी really believe in eating locally.
So Singapore में भी we would recommend कि आप if you are on a budget you must try hawker centers. Hawker center वहाँ के food centers होते हैं, like यहाँ पे अपने food court जैसे होते हैं, तो you can get a meal as cheap as $4, $5. हमने पूरी proper बिरयानी plates लेते थे हम लोग, वो $5 to $6 की आ रही थी and they were really nice. Yes. And yeah, and we spent around 700 per person. So total comes up to this amount. और अगर आप सेम गाइडलाइन फॉलो करोगे तो आप लोग भी विद इन दिस बजट ट्रैवल कर सकते हो. Also, this budget excludes the price of the extra flight that we booked. अगर आपने हमारी पूरे सिंगापुर सीरीज देखी होगी तो you would know कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी and we had to book extra flight and extra 2-day hotel. Not hotel, actually it was a beach resort. वो भी हमें काफ़ी अच्छी डील पे मिल गया था. तो अगर आप थोड़ा और स्पेंड करना चाहते हो और स्पेंड कर सकते हो तो यू कैन स्टे देयर एज वेल. उसकी भी हम डिटेल्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन पे. इट वाज रियली नाइस एंड वर्थ एवरी पेनी. So we booked that property for 8K per night for a couple. So it comes up to 4K per person. So that was quite inexpensive for that kind of luxury hotel. So here are some quick tips. Book in advance. Don't forget to use your bank and travel app offers. Don't miss any free attraction in Singapore. Book your activities from Klook app and look for bundle deals. You will save a lot. Only use MRT or bus. Carry a bottle everywhere you go because water is paid, it's not free and it's quite expensive. You can also ask your hotel people to provide you a free water bottle. Download My Transport SG app for all MRT and bus maps. Decide in advance where to eat and plan your day accordingly. Buy chocolates and gifts from Bugis Market in Chinatown and also check out Valley Dollar stores for very inexpensive buys. Also check out Daiso for $2 gift items. Always carry an umbrella with yourself because the weather is uncertain there और कभी भी बारिश हो सकती है. And to buy electronic item at very good price, you can check out the Funan Plaza and Sim Lim Square. Also, if you are looking for any Indian items, you can check out the Mustafa Center. And if you guys have any more questions, please do not hesitate and just drop us a message or DM us on Instagram. So yeah, that's it for Singapore series. And finally, we did this video. Hope you guys like it and it is of some help to you guys. So yeah, thanks for watching.